Now the next type of asexual mode of reproduction is regeneration. So here in regeneration, sometimes an organism it may be broken into two or more pieces, and each of the piece will grow into a new individual. So this capacity or this ability is called the regeneration, which is generally found in various invertebrates and the vertebrates. Okay, so it is the ability of an organism to replace its damaged or lost body parts. Okay, for example planaria, which shows a very good example, hydra also, starfish also, means the organism, if by any chance they if their part is being broken down, so each piece, each broken part will get rise into a new complete individual. That process is called the regeneration. Okay, you can see this kind regeneration process in an earthworm also. If the earthworm is cut into two or more pieces, so it will regenerate into complete individual itself by the process showing regeneration. Likewise the starfish too. Okay, so this part is called the regeneration. If we talk about that, the difference between regeneration and fragmentation, as we all know, the both the terms, they look like similar, right? Means if some part of the, if some part of an organism it will break down, so each part or each piece will grow into a complete organism. But if we talk about regeneration, then regeneration will associated mainly with the animals. Or if we talk about fragmentation, that fragmentation it mainly associated along with the plants. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि रीजनरेशन कहाँ हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो रहा है. हम मेन पर्पजली जो फ्रेगमेंटेशन को देखेंगे, इट कैन बी सीन इन द प्लांट्स ओनली. अगर हम एनिमल्स के केस में देखते हैं तो वहाँ रीजनरेशन होती है. लेट इन केस मैं एक एग्जांपल लूँ लीजर्ड की टेल का. लीजर्ड की टेल कई बार कट हो जाती है, सो इट हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ. वो जो टेल है वो दोबारा से रिप्लेनिश भी हो जाती है. Likewise, in the human being, if if we cut some part of the liver, so liver cells has the ability to regenerate that damaged part or that cut part into a complete its shape, मतलब उसकी शेप को बिल्कुल कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज कर देती हैं. तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर लीवर के अंदर भी रीजनरेसी कैपेसिटी होती है. एंड in the salamander's tail it also has the regenerative capacity. Okay, and fragmentation on the another side is also a mode of asexual reproduction. Okay, it is the unintentional cutting up of the body, unintentionally, which is being cutting up of the body of an organism, which each grows into a different organism. And it is most commonly occurs in some algae, as I have also showed the example to you. Okay, what was the example was the Spirogyra filamentous alga. Okay, now the next mode of asexual reproduction is the spore formation. Spore formation, it basically most probably seen in bacteria and some fungi. Maximum you can see in the fungi. So spores are the unicellular bodies which are formed by the cellular division in the parent organism. So formation on germination of tiny spores of the sporangium. Sporangium is the spore bearing structure जो spores को bear करके रखा हुआ है, that is the sporangium which bears the spores inside it. And these spores are some unicellular bodies which are formed by the regular cell division in the parent organism. Okay, so formation of tiny spores led to the production of new plant body under some appropriate conditions like moisture. अगर मॉइस्चर मिल जाए तो स्पोर फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है. एंड इट विल लेड टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स, लेड टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, सो स्पोर फॉर्मेशन हम बेसिकली कहाँ सीन करेंगे? विल सीन इन द फंजाई, दैट इज एग्जाम्पल rhizopus. See, you can see in the have you heard about the example of bread mold? Bread mold is mold means it is a case, it is a case of the increment of the fungus inside the bread, and that will lead to the increase in the spore formation inside the bread, which makes it
स्पंजी, जो उसको पंजेंट और उसको उसके अंदर फंगस क्रिएट कर देता है. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज़ द ब्रेड मोल्ड. ओके, and it is being done by mucor also. Mucor is also an example of this where the spore formation occurs. Okay, so the next part of the asexual mode of reproduction is the vegetative propagation. So vegetative propagation, simply it means is from any part of the plant like the root or shoot or leaf a new complete plant will be grown. मतलब प्लांट के किसी भी छोटे, किसी भी एक ऐसे पार्ट से, चाहे वो रूट हो, शूट हो या फिर वो लीव्स हो, उनसे एक कंप्लीट और प्लांट का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. So it is a special case which is happen only in the higher plants. Okay, which has the capability to reproduce sexually also. मतलब इसके पास एक sexual reproduction की capacity भी होती है, that is only in the flowers. So here vegetative propagation is a type of asexual, मतलब plants के सारे part, रूट, शूट, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं, रूट, शूट एंड द लीव्स, दे ऑल possess the asexual mode of reproduction, while the plant's sexual reproduction is being done only with the help of flower. फ्लावर एक ऐसा एकमात्र ओनली सोर्स है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किया जाता है. अदरवाइज जितने उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उसके लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स, all they possess the asexual means. Okay, so when a vegetative part of a flowering plant like the root, leaf and the shoots, they reproduce a complete new plant, and it is called the vegetative propagation. It occurs only in plants when a part of the plant body it becomes detached or develops into a new self supporting plant. या तो प्लांट का कोई पार्ट डिटैच हो जाए या फिर एक सपोर्टिंग प्लांट के फॉर्म में वो डेवलप कर जाए. सो दिस इज़ कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, इट हैव नॉचेज ऑन द मार्जिन. मार्जिन पे उसकी इतनी नॉचेज, छोटी छोटी नॉचेज, मतलब कॉर्नर्स बने हुए थे. एंड if these notches of this, or we can say that if this side of the leaf will put under into the soil, then the small saplings will grow from the notches of the leaf margin. छोटे छोटे soil के उनको एक moisture, उनको एक condition मिल गई ना, उनको एक appropriate condition ऐसे मिल गई कि वहाँ से फिर एक न्यू ब्रांचेस की भी ग्रोथ, न्यू लीव्स की भी ग्रोथ होनी शुरू हो गई. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ प्रोमोटिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये देखिए, आप अच्छे से उसको क्लियरली देख सकते हैं. सो द बर्ड्स दे प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ द ब्रायोफिलम. ये ब्रायोफिलम एक लीफ होती है विच फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट्स. यहाँ से ही न्यू प्लांट डेवलप करना शुरू कर जाएंगे. लाइकवाइज सेम प्रोसीजर विल फॉलो इनटू द बर्ड्स ऑल्सो. ये बर्ड्स के साथ भी फिर वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो किया जाता है. रूट्स के साथ में देखिए, if we talk about vegetative reproduction by the roots, so new plants they will grow out of swollen modified roots called the tubers. सी स्वीट पोटैटो, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका. स्वीट पोटैटो जैसे ग्रो करते हैं तो या नॉर्मल पोटैटोज जैसे ग्रो करते हैं, वो रूट से ग्रो करते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये रूट से किसी और चीज़ का ग्रो हो जाना है. सो न्यू प्लांट्स विल ग्रो आउट ऑफ स्वलन मॉडिफाइड रूट्स कॉल्ड ट्यूबर्स. आलू के साथ आपने कभी देखा हो पोटैटो में ट्यूबर्स रहते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं. वो उनको अगर आप ग्रो करेंगे तो साथ में फिर से पोटैटो ही ग्रो कर जाएंगे. सो लाइकवाइज द बर्ड्स दे डेवलप एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड देन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. फिर वो बिल्कुल वही प्लांट के फॉर्म में ग्रो करेंगे और नीचे से रूट्स में से आपके पोटैटो ग्रो कर रहे होंगे. नेक्स्ट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द स्टेम्स. स्टेम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, देख रनर्स, देखिए यहाँ पर रनर्स हैं. रनर्स कैसे, इनको ये स्टेम्स होती हैं विच ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से अबव थोड़ा हॉरिजॉन्टली उनको ग्रो कराया जाता है. एंड दे हैव नोड्स वेयर द बर्ड्स आर फॉर्म्ड. जो जहाँ यहाँ पे बर्ड्स अगर फॉर्म हो जाएंगे, यही बर्ड्स फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगी, राइज कर देंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में. सो this way the vegetative propagation in stems occur. If we talk about the artificial vegetative propagation, means this was a natural system जो अपने आप हो जाता है कि स्टेम से ही, कैसे स्टेम से अगर एक छोटी सी बर्ड अगर वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो इट विल ऑल्सो फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म.
रूट से जैसे हो रहा है, इट विल फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल, दैट इज़ बिंग द मैन मेड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर के फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं. हम उसमें मतलब कैसे हम और आगे कल्टीवेशन कर सकते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ कर सकते हैं, तो दैट दिस बिंग डन बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन्स. तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैन हैज़ यूज्ड this propagation system to grow many plants. So this has enabled the farmers and the horticulturists to grow many plants on short duration. जैसे आपने नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं उनको, बाउंसेस होते हैं, जो बॉन्साइज होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ट्रीज़ बना दिए जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे ही, कि वो उसमें से हम बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह की भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन कर सकें, फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर सकें बहुत जल्दी, और उनको स्मॉल टाइम में ही ग्रो कराया जाए और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हाई किया जाए. तो दिस वे, तो ये जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से ही होता है. So tissue culture is also a many important factor for this artificial vegetative propagation. Stem cutting, layering, grafting, they are also the preferred means for this artificial vegetative propagation. So stem cuttings यानी कि हम कट करते हैं प्लांट के पार्ट को, यानी कि स्टेम पार्ट को, और उसको किसी और पार्ट में जाके स्टक कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. सो दिस इज़ द कि हम एक प्लांट के एक पार्ट का स्टेम कट किया और उसको दूसरे पार्ट में जाके उसको वहाँ पर अटैच कर दिया. ठीक है. शूट्स विद द लीव्स देर अटैच्ड आर दे आर यूजली यूज्ड एंड द न्यू रूट्स एंड लीव्स विल ग्रो फ्रॉम दैट कटिंग. फिर वहाँ से उस कटेड पार्ट से आपके न्यू रूट्स और जो भी आपके जितने भी पोर्शन आपके वहाँ से लेफ्ट बैक रहते हैं वो आपके फिर से ग्रो कर जाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड द स्टेम कटिंग. यानी स्टेम को आपने वहाँ से कट किया है और उसको कहीं और किसी अच्छे सॉइल में डाल के उसको वहाँ पे आप अटैच कर रहे हैं, तो वहाँ से एक रूट भी ग्रो हो रही है और शूट्स भी ग्रो हो रही है, यानी कि एक न्यू प्लांट का पार्ट जो है वो ग्रो कर रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड द स्टेम कटिंग. इसको नोड से काटा जाता है. सो देखिए, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो कि यहाँ से एक उसका प्लांट का पार्ट लिया है, स्टेम कट की है, और उसको फिर पेरेंट प्लांट से हटा के उसको नया प्लांट में, नए पॉट में उसको डाल के वहाँ से सैंड में इसको अटैच कर दिया है. तो वहाँ से न्यू रूट्स एंड लीव्स विल ग्रो फ्रॉम दैट पार्ट, फ्रॉम दैट शूट पार्ट. सो दिस इज़ कॉल्ड द स्टेम कटिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट द लेयरिंग, सो इन लेयरिंग अ शूट ऑफ अ पेरेंट प्लांट इज़ बेंट until it can be covered by the soil. जब वो बेंड हो जाती है या उसको बेंड कराया जाता है, इतना बेंड करा दिया जाए कि वो सॉइल के साथ में अपने आप ही दब जाए. तो जैसे ही वो सॉइल के अंदर अंडरनीथ उसके अंदर कवर अप हो जाएगी, तो वहाँ से क्या रूटिंग और शूटिंग दोनों ही प्रमोट होना शुरू हो जाएंगी. रूटिंग यानी कि रूट्स का फॉर्मेशन, शूटिंग यानी कि फिर से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन. सो दिस इज़ कॉल्ड द लेयरिंग. ये प्लांट की जो शूट्स होती हैं या स्टेम्स होती हैं उनको खुद इतना तो बेंट करा दिया रहता है, या बाय एनी चांस वो बेंट हो भी जाती हैं, तो वहाँ से खुद से फिर एक और आपका न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम दैट पार्ट. सो दीज प्लांट दे कैन बी सेपरेटेड. फिर उनको सेपरेट भी कर दिया जाता है बाय द कटिंग प्रोसेस. ओके, सो दिस वे लेयरिंग हैपन्स. सो दिस इज़ द वेरी गुड मोड ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इफ वी टॉक अबाउट ग्राफ्टिंग, सो ग्राफ्टिंग ये बहुत हद तक आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे रोज़ में, कि रोज़ में क्या किया जाता है. रोज़ में प्लांट, सपोज़ रोज़ का जो प्लांट है उसके पार्ट को इस तरीके से कट किया जाता है कि जो उसका अपर पोर्शन, जो स्टेम होती है ना, उसकी जो अपर पोर्शन जो होती है स्टेम की, उसको सियोन बोलते हैं, और जो लेफ्ट जो रह जाता है पार्ट जो बच जाता है उसको स्टॉक बोला जाता है. तो सियोन को फिर दूसरे स्टॉक पे, यानी दूसरे स्टॉक वाले दूसरे रोज़ प्लांट के स्टॉक से इस तरीके से ग्राफ्ट कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, कि फिर वो वहाँ से फिर से क्या होता है, आपके रोज़ प्लांट का फॉर्मेशन शुरू होना शुरू हो जाता है. तो देखिए, आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे आपके फ्लावर्स हैं. मैं एक रोज़ का एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये नॉर्मल बहुत सारे फ्लावर्स के केस में होता है कि यहाँ से अपना स्टेम का पार्ट कट किया, जो अपर पोर्शन ऑफ स्टेम होता है दिस इज़ कॉल्ड द सियोन, एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम विच इज़ बीइंग कटेड इज़ कॉल्ड द स्टॉक. सो सियोन को फिर दूसरे प्लांट के स्टॉक से जाके उसको स्टिक करके देना, अटैच करके रख देना, एंड दैट विल
will rise to grow into a new formation of the flowers, जो नए नए flowers की formation फिर से develop कर देगी, and this process is called the grafting. So in grafting, two plants are used to develop a new plant with combined traits. Okay, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें दो अलग अलग plants के जो stems हैं, ऊपर वाले को नीचे के साथ, नीचे वाले को ऊपर के साथ, इस तरीके से अटैच किया जाता है in grafting process, and this will form a new plant also, which will having the combined traits of the two plants, मतलब दोनों plants के characters traits उसमें मिल जाएंगे. सो दिस वे हम, मतलब जैसे अब रोज़ेज़ हैं, आपको रोज़ एक येलो भी मिल रहा है, एक आपको रेड भी मिल रहा है, एक आपको पिंक भी मिल रहा है, तो क्यों इतनी वेराइटीज़ कैसे आ जाती हैं? इसी वजह से, ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस की वजह से, क्योंकि ट्रेड्स को कंबाइन कर दिया जाता है. सो दिस वे द ग्राफ्टिंग हैज़ बीन हैपेंड. सो दिस इज़ अ बेसिक मोड ऑफ, we can say, the artificial vegetative propagation or overall vegetative propagation, which is a asexual means of transport. And this way we have all covered up our asexual mode of reproduction. Now we'll go on to the next sexual reproduction. Okay, so for before going to the mode of the sexual reproduction, let's take a look on the advantages of vegetative reproduction. So the advantages of vegetative reproduction are that the plants raised by vegetative reproduction, they can bear the flowers and fruits earlier than those produced from the seeds. देखिए क्या कह रहा है ये, कि सीड से पहले ही हमें फ्लावर्स और फ्रूटिंग होनी, मतलब शुरू हो जाएगी प्लांट्स के अंदर. सो दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. न्यू प्लांट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस. एक ये भी बहुत अच्छा है कि नए नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से. ओके, कि हमें अगर सपोज़ मैरीगोल्ड है और जास्मिन है, दोनों के कॉम्बिनेशन ट्रेड्स को कंबाइन करके हम एक न्यू वैरायटी को फॉर्म कर सकते हैं. सो दिस कैन बी डन बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. न्यू प्लांट्स हमें मिल सकते हैं नई वेराइटीज़ के. ओके, और सीड से बिफोर सीडिंग हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग डेवलप हो जाएंगी, तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है. और एक अनदर एडवांटेज इज़ कि जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो मिल रहा है प्लांट, जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं वो जेनेटिकली सिमिलर भी रहेंगे पेरेंट प्लांट से, और आप उनको लैब में भी कुछ जेनेटिकली उनके साथ कुछ कल्चरिंग नहीं कर रहे हैं. सो सब चीज़ जो हो रही है वो नेचुरली और आर्टिफिशियली हो रही है, लेकिन लैब में कुछ उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि ऑल प्लांट देर प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट ऑल्सो. ओके, सो these are the various advantages. Okay, so this was all about the asexual mode of transport. Okay.